Good morning, everyone. So today's lecture is again based on the capacitor factor. We have to finish it off. Today's lecture number 12 of the chapter of electrostatics, of which we have completed a very important part, capacitor. In the previous lecture, we have covered 30 questions which were related to the whatever we had studied about it. So we covered 30 questions in the last session. So this was 30 questions that we have covered. Now I am moving on to the question. Let's look at this question. Yes, 21 was for homework. I hope you tried that question. Did you try, everybody? Did you try 21? So we can discuss it. So some people have tried, that is good. Please, whatever homework I give, please try them at least. Obviously, I'll give you the solution, but I want you to try. Because MCQs will be unseen. They will not come as seen. You're not going to repeat anything that you have seen. You have to be ready for unexpected kind of questions as well. So let's see this. 3 capacitors of 2 microfarad, 3 microfarad, and 6 microfarad are joined in series, and the combination is charged by a means of a 24-volt battery. What is the potential difference between the plates of the 6 microfarad capacitor? Will you try? So if you look at this particular question, you have 3 capacitors, 2 microfarad, 3 microfarad, and 6 microfarad, and they are connected in series to a 24-volt battery. What is the potential difference across this 6 microfarad? What is the potential difference across 6 microfarad? सीरीज में क्या सेम रहता है? सीरीज में क्या सेम रहता है? चार्ज सेम रहता है. यस. अगर आप 3 कैपेसिटर, कैसे स्टेप्स करेंगे? पहले क्या निकालना पड़ेगा? V निकालना है अक्रॉस समथिंग. पहले चार्ज निकालना पड़ेगा, उससे पहले CS निकालना पड़ेगा, राइट? तो ये स्टेप्स में है. पहले आपको CS निकालना पड़ेगा, फिर आप टोटल चार्ज निकालेंगे, फिर आप V इज इक्वल टू Q बाई C डाल के आप वहां का वोल्टेज निकाल सकते हो, right? So your steps are going to be, first you find what is CS, that is 1 upon CS is 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3, ये पहले निकालना पड़ेगा. फिर सेकेंड केस में आपको निकालना पड़ेगा Q which will be CS into V. फिर थर्ड पॉइंट में आपको जो वोल्टेज निकालना है, जिसके अक्रॉस निकालना है, वो 6 है. सो V is equal to Q by 6.
ये जो v of 6 निकालना है आपको, इट विल बी द टोटल चार्ज दैट इज जो आपको सेकेंड में मिल रहा है डिवाइडेड बाय 6। इस तरीके से 3 स्टेप में आप ये आंसर लेके आ सकते हैं। तो विल यू ट्राई फर्स्ट, देन आई विल गिव यू अ ट्रिक मेथड, बिकॉज फिर हम 3 स्टेप के बदले एक ही स्टेप में उसको लेके आ सकते हैं। So that I will tell you, but can you tell me how much is, first of all, how much is CS? पहले आप मुझे CS बताएं। अच्छा, CS आपको 1 मिल रहा है, वेरी गुड, ओके। CS 1 है तो Q कितना हो गया? यस, तो Q 24 हो गया। तो वोल्टेज कितना हो गया? तो सबको आया है, so then we don't need the method here. So this is 1 microfarad। पहले CS आपको 1 microfarad आ रहा है, फिर यहाँ पर 1 into 24 आपको 24 कूलम आ रहा है, 24 माइक्रोकूलम। उसके बाद 24 माइक्रोकूलम अपॉन 6 माइक्रोफैरड आपको 4 आ रहा है। सो 4 वोल्ट इज योर आंसर। स्टेप समझा? सो आई कैन आस्क अक्रॉस एनीथिंग, राइट? आई कैन आस्क अक्रॉस 3, अक्रॉस 2। अक्रॉस 3 होता तो आंसर क्या होता? अक्रॉस 3 होता तो आंसर क्या होता? ये तो अक्रॉस 6 लिया है। 3 के अक्रॉस पूछा तो डेटा में सिर्फ ये 6 के बदले 8 जाएगा, 3 हो जाएगा, तो आंसर 8 वोल्ट होगा। Got this? So this was the 31st question. I hope everyone has understood. Let's look at the 32nd question. Two capacitors of capacitances 3 microfarad and 6 microfarad are charged to a potential of 12 volt. They are now connected to each other with the positive plate of each joined to the negative plate of the other. ये कौन सा connection है? I'm sure that in lecture number 9 I explained this. When the positive plate of one is connected to the negative plate of the other, एक कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट जब दूसरे कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? Okay, so I have many majority answering it correctly, some are answering it wrong. It is series connection. जब भी एक का, देखो ना यहाँ पर भी सीरीज है, सो सीरीज में क्या होता है, एक का प्लस, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस को जा रहा है। तो हमेशा सीरीज कनेक्शन में एक कैपेसिटर का नेगेटिव दूसरे कैपेसिटर के ऑपोजिट चार्ज मतलब पॉजिटिव में जाएगा। सो ये दोनों कैपेसिटर्स कैसे कनेक्टेड हैं? सीरीज में। क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच। आप निकाल पाएंगे? सेम स्टेप्स, सेम स्टेप्स, सिर्फ यहाँ पर अभी 2 नहीं है। इन अदर वर्ड्स देयर आर ओनली 2 कैपेसिटर्स। कैन यू ट्राई प्लीज? क्या आप ढूंढ पाएंगे? There are 2 capacitors, that is 3 and 6 and 3 माइक्रोफैरड है और ये 6 माइक्रोफैरड है। क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ना। The two capacitors of capacitances 3 and 6
आर चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ 12 वोल्ट ईच। का मतलब क्या हुआ? ये टाइप के क्वेश्चन जो है जहां बोल रहे हैं कि 3 और 6 आर चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ 12 वोल्ट ईच। 12 वोल्ट मतलब हर एक को 12 के साथ, हर एक को 12 के साथ वोल्टेज दिया है। They are now connected to each other with the positive plate of each connected to the negative plate of the other. What is the potential difference across each? थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें। Let me see who can think, because this is slightly. Okay, I'm getting a variety of answers here. I'm giving you 1 minute to think about it. अच्छा, याद है तुम लोग को मैंने बताया था कि हमें पहले क्या चेक करना चाहिए? हमें हमेशा चार्ज पहले चेक करना चाहिए। यू रिमेम्बर? क्या इन दोनों का चार्ज, मैंने वापस सी क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, उसने बोला है कि उसने 3 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड दोनों को 12 वोल्ट से चार्ज किया है। डिड यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट सेंटेंस? इसमें चार्ज सेम है कि डिफरेंट है? इसमें चार्ज सेम है कि डिफरेंट है? सेम है। आपको सेम लग रहा है? 12 into 3 is equal to 12 into 6. What is charge? Q is equal to CV. 3 into 12 जब आप करते हैं, is it equal to 6 into 12 या दोनों अलग है? मेरे हिसाब से तो एक मुझे 36 मिल रहा है और दूसरा मुझे 72 मिल रहा है। सेम है कि डिफरेंट है? क्वेश्चन नंबर 32 एक झटका है। क्वेश्चन नंबर 32 जो हम अभी कर रहे हैं, अभी नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है? अभी आप बोलोगे चार्ज तो डिफरेंट है, और अगर चार्ज डिफरेंट है वो सीरीज होगा कि पैरेलल होगा? थिंक का सीरीज होगा कि पैरेलल होगा? अगर चार्ज अलग है तो पैरेलल होना चाहिए, बट सेकंड स्टेटमेंट ने आपको कंफ्यूज कर दिया। सेकंड स्टेटमेंट में आप सबने मुझे बताया कि जब पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट कनेक्टेड होता है तो क्या होना चाहिए? तो नेगेटिव होना चाहिए। नो नो नुसरत, 31 और 32 अलग क्वेश्चन है बेटा।
31 तो डायरेक्ट सीरीज है ना, इट इज कनेक्टेड टू 24 वोल्ट। ये 32 ऐसा नहीं है। 32 में उसने क्या किया पता है, 3 माइक्रोफैरेड को अलग से 12 वोल्ट से चार्ज किया। वो आपको V पूछ रहा है यहाँ पे, मतलब ये V मुझे नहीं पता है, ये V पूछ रहा है। उसने 3 माइक्रोफैरेड को कहाँ पे 12 वोल्ट से ऑलरेडी चार्ज किया हुआ है। क्वेश्चन को पढ़ो, आर चार्ज्ड टू अ पोटेंशियल ऑफ 12 वोल्ट ईच, मतलब 12 वोल्ट से सेपरेटली उसको चार्ज किया है और फिर उसको ज्वाइन करने को बोल रहा है। तो आपको जो पता है, सो राइट नाउ वी कैन नॉट से दे आर इन सीरीज, सो द डायग्राम इज गोइंग टू चेंज। ये अभी सीरीज में नहीं हो सकता। इसका ये मतलब है कि हमने ये जो ड्रॉ किया है, अब इसको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। मतलब दिस इज योर 36, ये जो 36 आपको मिल रहा है, दिस इज योर पहला वाला कौन सा है, 3। सो 3 माइक्रोफैरेड ये है और ये 6 माइक्रोफैरेड है, और ये ऑलरेडी 36 माइक्रोकूलम से चार्ज हो चुका है। ये उसका चार्ज है, ये उसका C1 है, ये उसका C2 है, और इसका चार्ज जो है 72 माइक्रोकूलम है। इमेजिन दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको पूछा गया है कि यहाँ का कॉमन पोटेंशियल क्या है, यहाँ का पोटेंशियल क्या है। सी दीज आर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आप इजी एक्सपेक्ट नहीं करने का, क्वेश्चन को पढ़ने का 2 बार। उसने क्या बोला है कि पहले एक पोटेंशियल 3 माइक्रोफैरेड को लिया, उसको 12 वोल्ट से चार्ज किया, फिर 6 माइक्रोफैरेड को लिया, उसको भी चार्ज किया। अब हमें जानना है कि ये कैसे फिर सेकेंड इसमें आ रहा है। सो व्हाट दे हैव डन इज प्लेट को उल्टा किया है। मतलब यूजुअली हमारा पॉजिटिव का प्लेट ऐसे रहता था और हमारा नेगेटिव का प्लेट ऐसे रहता था, डू यू एग्री? और पैरेलल में यूजुअली लेफ्ट साइड वाला पॉजिटिव रहता था और राइट साइड वाला नेगेटिव रहता था। तो ध्यान से सुनिए कि अगर वो बोलते हैं अगर अपना चार्ज अलग आ रहा है, इसका मतलब है वो पैरेलल कनेक्शन है और उन्होंने प्लेट्स को उल्टा कनेक्ट किया है। इज द क्लास गेटिंग द पॉइंट? फिर ये माइनस और ये प्लस है। आई रिपीट वंस अगेन, according to the second line, what I thought you was it should be series connection, but the case here is अगर अपना चार्ज मैच नहीं होता, हमारा 12 3 36 और 12 6 72 आ रहा है, इसका मतलब ये सीरीज कनेक्शन नहीं है। बट सेकंड स्टेटमेंट के हिसाब से आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई ये सीरीज होना चाहिए, बट कैसे होगा? बिकॉज द चार्ज इज डिफरेंट। तो इस केस में, विच इज अ वेरी एक्सेप्शनल केस, याद रखना प्लेट्स की अदला बदली हुई है, मतलब द प्लेट्स हैव बीन इन्वर्टेड। That's why the minus of the second one will get connected to the plus of the first one. Have each of you understood this? Because this is not a joke. This is very, very important. याद है common potential का formula आपको सिखाया था? Do you remember the common potential formula which I had given you? I might have given you C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2. Do you remember this formula? ये कब यूज करने का? जब दोनों पैरेलल में है बट दोनों का लेफ्ट साइड का प्लेट पॉजिटिव में है। बट अभी आप देखेंगे ये पॉजिटिव नहीं, मैंने उसको उल्टा कर दिया। तो फर्क सिर्फ इतना होगा, फर्क सिर्फ इतना होगा कि इसमें माइनस लगेगा। एनी डाउट? anybody has any doubt here? Because this is what I am explaining कि इस बार इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ के 2 टाइप आपके पास है। So आपको जो मैंने सिनॉप्सिस में दिया वो टाइप में अगर दोनों, yes I am repeating it once again, please pay attention. पहले ये पार्ट सबको समझा है कि चार्ज अलग है, सबको ये पार्ट समझा है कि चार्ज अलग है। Everyone has understood? Yes, right? चार्ज अलग है तो पैरेलल कनेक्शन है, ये सबको समझ में आया। बट जो सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है उधर आप फंसोगे ना। उसने क्या लिखा है? विद द पॉजिटिव प्लेट ऑफ ईच। हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग डेटा को फॉलो कर रहे हैं। विद द पॉजिटिव प्लेट ऑफ ईच जॉइन टू द नेगेटिव प्लेट ऑफ द अदर। तो हमें वैसे ही कनेक्शन करना है
the positive plate of one has to get connected to the negative plate of the other. और ऐसा होने पर डिफरेंस क्या होना चाहिए फॉर्मूला में, कि जहां आपने प्लस डाला था वहां पर आप क्या डालेंगे, माइनस, क्योंकि प्लस वाला कब यूज करते हैं, प्लस वाला तब यूज करते हैं जब एक प्लेट का पॉजिटिव दूसरे प्लेट के पॉजिटिव को कनेक्टेड होता है। इस केस में हम यहाँ पॉजिटिव कंसिडर करते हैं साइन को बीच में। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये बीच में हम पॉजिटिव तब कंसिडर करते हैं ये केस में, और नेगेटिव होगा मतलब हम इस केस में कंसिडर कर रहे हैं। याद रहेगा ये फॉर्मूला, कि जब वो मेंशन कर रहे हैं कि दोनों प्लेट्स अलग अलग है, उल्टा लेना है आपको, बिकॉज आपने इनवर्स किया, आपने रिवर्स किया। जब आप रिवर्स करते हैं किसी चीज को तो माइनस लेते हैं। जैसे आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में बैटरी को रिवर्स करते हैं, तो हर जगह पे आप E1 प्लस E2 नहीं ले सकते, E1 माइनस E2 भी आएगा कुछ जगह पे। सो नथिंग, वी आर जस्ट रिवर्सिंग द पोलैरिटी। पोलैरिटी मतलब साइन ऑफ द कैपेसिटर, बिकॉज द क्वेश्चन टोल्ड अस टू डू इट। अगर उन्होंने ये सेंटेंस लिखा ही नहीं था तो हम C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 लेते, बट क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया गया है तो हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमको ये करना ही पड़ेगा। अब मुझे बताओ कि इस केस में हमारा Q1 क्या है। Q1 is nothing but say 36, Q2 is nothing but 72 upon what is C1 plus C2, that is 3 plus 6 9। अब आप मुझे आंसर बता सकते हैं, what is the common potential? What is the common potential? Are you getting the answer? इसमें से कोई भी ऑप्शन है, क्या आंसर मिलेगा आपको? Is everyone getting 36 by 9? आंसर 4 आ रहा है। हाँ, -4 +4 फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज द वोल्टेज इज एनीवे। So the option over here is 4 volt. Are you getting it? So here the answer will be 4 volt. मतलब -4, but that polarity doesn't matter for the battery. No, it can be. Pratham, current can never be negative. मतलब that is based on, these are all scalar quantities. So वो प्लस माइनस का फर्क नहीं पड़ता। We came to know Darshi because of the charge. Q is equal to CV करना है ना दर्शी, तो ये 12 वोल्ट को हम जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें चार्ज मिलता है। 6 को जब हम 12, क्योंकि उसने बोला है ना कि ईच को, मतलब ईच को उसने 12 से ये किया है, 12 से मल्टीप्लाई करना है और चेक करना है कि आपका Q कितना है। सो द मेन थिंग आउट हियर is always check Q is equal to CV. Always check Q is equal to CV ऐसे क्वेश्चंस में। और अगर चार्ज सेम है तो वो सीरीज है, अगर चार्ज क्या है, डिफरेंट है, तो वो पैरेलल है। तो यहाँ का क्वेश्चन क्या है अगर मैं समझाऊं तो एक जो 3 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है उसको 12 वोल्ट से पहले चार्ज किया गया, फिर 6 माइक्रोफैरेड को भी 12 वोल्ट से चार्ज किया गया। तो हम देख रहे हैं कि उसको अलग अलग चार्ज करके उन्होंने फिर उसको कनेक्ट किया है। सो इस केसेस में हम देख रहे हैं कि चार्जेस अलग है, और जब चार्जेस अलग होते हैं तो वो पैरेलल कनेक्शन है। यहां से हमें पैरेलल का पता चल गया। सेकेंड पॉइंट में क्या हो रहा है, सेकेंड में उन्होंने हमको बताया कि आप प्लेट्स को ऑपोजिट कनेक्ट करें, कि पॉजिटिव का जो प्लेट है वो नेगेटिव के साथ कनेक्ट करे और नेगेटिव का जो प्लेट है पॉजिटिव के साथ करे। हमने नहीं किया है, हमें करना होता तो हम ये जो डायग्राम है जो मैंने यहाँ राइट साइड पे ड्रॉ किया वैसे हम कनेक्ट करते हैं, बट उनका ये कहना था कि आप पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करें और नेगेटिव प्लेट को आप पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करें। तो इसीलिए इस कॉमन पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है जो हम सिर्फ पैरेलल के लिए यूज करते हैं, वहां जो प्लस साइन थी उस प्लस साइन के हिसाब से माइनस साइन आ गई। तो ये कंडीशन जो क्वेश्चन में दिया गया है, ये जो केस जो क्वेश्चन में दिया गया है, इसकी वजह से हमें ये करना पड़ रहा है। सो एवरीवन प्लीज टेक डाउन दिस क्वेश्चन।
This is a very important part. I hope you finished the previous slide. If you have any doubt, you can ask. Please take it down and mark this question very important. So this is classwork. So classwork, I'll be doing a little the good questions, in fact, and then maybe I can give you some homework if you are ready to do. तो फिर हम कुछ नहीं करते मनीष, तो हम जो पहला क्वेश्चन है वैसे ही करते, फिर हम लोग उसको नॉर्मली सीरीज में ले लेते, ठीक है? या आई कैन गिव यू, अगर सब लोग रेडी है होमवर्क करने के लिए तो मैं दे सकती हूँ आपको होमवर्क, मुझे कुछ नहीं है, बट करना भी जरूरी है, सब लोग करना चाहिए। जैसे हमारे लास्ट बैच के जो बच्चे हैं उनको होमवर्क देते थे तो वो लिख के फिर मेल करते थे, फोटो भेजते थे, तो ये जो है फिर थोड़ा सा एवरीवन हैज टू डू इट, अदरवाइज कुछ लोगों ने किया कुछ लोगों ने नहीं किया तो उसमें फिर कोई मजा नहीं आएगा। आई बिलीव दैट वी शुड ऑल डू इट टुगेदर, सो आई कैन सेंड होमवर्क if you are ready to do, because it should not be कि me preparing the homework, me preparing the solution, मेरा एग्जाम नहीं है। so अगर आप रेडी है करने के लिए then I am ready to give you. If you are ready, please tell me in the chat box, because then it's very important, because actually there are a lot of questions which will be extremely important. You want the last slide? This is the last slide. Mark question number 32 very important. अगर आप नोटबुक में लिख रहे हैं कुछ तो आप 32 को important mark करें. Is it completed, guys? This slide is done. This slide is done. Everyone has completed. Can I move ahead? Done, everybody? Yes or no? Okay. I'm moving on to the next three.
So now I think the the question that I have put there 115 you can solve. That is the 33rd question for today. I don't think you need my help for 33. This is 33, this is 34, and this is 35. So I don't think you need my help here. Can you try 33 on your own? Because maximum capacity और minimum capacitance आपको पता है क्या होता है. Okay, so I have people answering it correctly. Maximum and minimum capacitance. Maximum capacitance मतलब parallel, जिसको आप CP is equal to NC पढ़ा है आपने, और minimum capacitance मतलब CS, जिसको आपने C by N पढ़ा है. This is the hint for others. जो लोग ट्राई कर रहे हैं, CP is equal to NC और CS is equal to C by N. अभी तो करो. Very good. So everyone has answered correctly. The option is option A. Because N is 3. N आपका 3 है और हर एक का वैल्यू 3 है. They are similar. So 3 3s क्या होगा 9, which is the first answer. So CP is 9 and CS is C by N. That means it is 3 by 3. That is 1. इसलिए आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन A. Very good. Question number 34. A capacitor of capacity C1 is charged up to V volt. अब ध्यान से देखना ये कौन सा वाला है. एक कैपेसिटर लिया है, उसको चार्ज किया है V वोल्ट से, and then connected to an uncharged capacitor of capacity C2. कुछ याद आ रहा है? ऐसा कोई क्वेश्चन किया हमने? एक कैपेसिटर को लिया, उसको V वोल्ट से चार्ज किया, उसको डिस्कनेक्ट किया, फिर उसको एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर से, यस वेरी गुड, अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट किया C2. व्हाट इज द फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस? इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? सेम फॉर्मूला, कॉमन पोटेंशियल. कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2. देखो यही फॉर्मूला के साथ खेल रहे हैं आज, है कि नहीं? अब तुम मुझे बताओ किसका चार्जिंग नहीं हुआ? किसका चार्जिंग नहीं हुआ? पहले कैपेसिटर C1 का कि C2 का? C2 का चार्जिंग नहीं हुआ. तो कौन सा पार्ट यहाँ पर जीरो है? इस फॉर्मूला में कौन सा पार्ट जीरो है? Which part is zero? Very good. C2V2 जीरो है क्योंकि C2V2 मतलब चार्ज होता है, Q is equal to CV. तो C2V2 जो है जीरो है. तो अब कौन सा ऑप्शन है? Which option is correct? Which option is correct? Very good. So majority class is answering option C. This is the right answer. Very good. Excellent. समझ में आया? इस फॉर्मूला को यूज करना समझ में आ गया सबको? एक कैपेसिटर लिया, उसको अलग से चार्ज करके फिर अनचार्ज बोला तो समझ जाने का. यहाँ पे क्लियर है? ओके.
Okay, this one I think you can do now because I have done a similar question. 35 वाला आप कर सकते हैं. There is a series combination of 3 capacitors. They are connected to a battery of 13 volt. So there is 1 microfarad, this is 2 microfarad, and this is 8 microfarad. This is similar to 31. It is connected to 13 volt. What is the potential difference across 2? अब ये आप खुद से करो फटाफट. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू. मैंने आपको 3 स्टेप्स करने को बोला है. CS था पहला स्टेप. सेकंड स्टेप चार्ज को फाइंड आउट करना है. वोल्टेज अक्रॉस 2 में जो भी आपको चार्ज मिलता है डिवाइडेड बाय 2 करना है. चलो लेट मी सी इफ यू गेट इट. 1/CS से स्टार्ट करो. 1/1 plus 1/2 plus 1/8. फ्रैक्शन में ही रखो. CS 13/8 कुछ आएगा. फ्रैक्शन में ही रखो. फिर Q इज इक्वल टू CS इंटू V में 8/13 आएगा. उल्टा आएगा. 13/8 तो 1/CS होगा. CS is 8/13 आएगा. Is everyone getting 8/13? 8/13 आ रहा है क्या? 1/1 plus 1/2 plus 1/8 करेंगे तो 13/8 आता है. बट CS उल्टा लेना है ना. 1/CS का आंसर है वो. तो CS आपको 8/13 मिलेगा. फिर आप उसको Q is equal to CS into V, and what is V? 13. So 8/13 into 13, 8 माइक्रोकूलम मिलेगा यहाँ पे. फिर V2 is equal to Q upon 2. So 8/2 कितना होता है? 8/2 कितना होता है? This is your answer. समझ में आ रहा है बच्चा? These are the type of questions you will have to face in the examination. So हमें लॉजिक बहुत क्लियर होना चाहिए तो ही हम ऐसे क्वेश्चंस अडेप्ट कर सकते हैं. So the answer for question number 35 is option C. So on this slide हमारे पास 3 फॉर्मूला हमने देखा है. एक है हमारा मैक्सिमम मिनिमम कैपेसिटी वाला फॉर्मूला. 34 में हम कॉमन पोटेंशियल वाले फॉर्मूला को देख रहे हैं. और 35 में हम 4 वोल्ट यानी कि हमने अपना नॉर्मल सीरीज वाला फॉर्मूला यूज किया. Okay, can I go to the next? Thirty-sixth question. 36th question. Again, a very important question. Let me see if you can think about it. There are 2 identical capacitors having the same capacitance C. One of them is charged to V1 and the other is charged to V2. The negative ends of the plates are connected together. क्या बोलोगे आप? सीरीज या पैरेलल?
पैरेलल दिख रहा है सबको? आई होप एवरीवन कैन सी नाउ इट्स अ क्लियर पैरेलल। बट आपको ढूंढना है व्हाट इज द डिक्रीज इन द एनर्जी। ओके, सो दिस इज अ लॉन्ग सोल्यूशन, सिर्फ एक ही बार लिखना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आपको पता ही चल जाएगा इसको पढ़ के। कैन आई स्टार्ट? सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इज, पहले जो W होगा टोटल एनर्जी इन द फर्स्ट केस, जब उसका पहली बार चार्जिंग हुआ है, सो W इज इक्वल टू, पहले इसको सॉल्व कैसे करने का, हाफ C V1 स्क्वायर, मतलब पहले का एनर्जी, प्लस हाफ C V2 स्क्वायर। डू यू एग्री? पहले कंबाइन एनर्जी, बिकॉज डिक्रीज इन एनर्जी ढूंढना है, तो पहले एनर्जी अपना ऐसा रहेगा। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, कैन आई राइट इट एज C/2 V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। यहां तक सबको समझ जाए? दिस इज W, पहला केस। ओके, ये आपका फर्स्ट केस है। अब क्या हुआ, आपने इसको सेपरेटली चार्ज किया और आप सबने मुझे बताया कि ये पैरेलल कनेक्शन है, क्योंकि आपको पता है चार्ज अलग है, Q इज इक्वल टू CV, दोनों के लिए अलग है। इसका ये मतलब है कॉमन पोटेंशियल इज C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। इसका मतलब इस केस में इट इज CV1, क्योंकि दोनों कैपेसिटर का वैल्यू C है ना, प्लस CV2 upon C plus C. Can you tell me what answer you will get? What answer you will get? This is a common potential formula because they are in parallel. Common potential सिर्फ parallel में use होने वाला formula है। तो क्या आप मुझे common potential का बता सकते हैं कि क्या मिल रहा है? What are you getting? Okay, so it's V1 plus V2 upon 2। ये सबको समझ में आए? क्योंकि दोनों का वैल्यू C है, तो हमें V1 प्लस V2 अपॉन 2 मिल रहा है। सो ये केस 1 है, जहां पर कुछ किया नहीं था, हमने पैरेलल कनेक्शन किया नहीं था। और ये केस 2 के हिसाब से पहले हमने वोल्टेज ढूंढा, राइट, वोल्टेज ढूंढा। अब हमें फाइनल एनर्जी ढूंढना है। अब ये कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल। सो द फाइनल एनर्जी इन दिस केस विल बी W डैश, लिख ले रही हूं मैं, हाफ CP इंटू कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर। हाफ CP का मतलब होता है C प्लस C, बिकॉज दे आर इन पैरेलल,
एंड कॉमन पोटेंशियल क्या है, V1 प्लस V2 अपॉन 2 का द होल स्क्वायर, V1 plus V2 upon 2 the whole square. So this will become half into 2C into 1 by 4 into V1 square plus V2 square. या इसको बाद में मैं ओपन करती हूँ, पहले ऐसे ही लिखती हूँ, V1 plus V2 the whole square, V2 the whole square. Is it okay? ये हमारा पहला इक्वेशन है, ये वाला हमारा पहला है, और ये जो हमें यहाँ मिल रहा है ये हमारा दूसरा है. So if you want you can cancel this, you can write this as C by 4 V1 plus V2 the whole square. So ये हमारा W dash है. अब देखो उन्होंने क्या पूछा है, तो पहले इक्वेशन में आपको जो मिल रहा है और सेकेंड इक्वेशन में जो आपको मिल रहा है, उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द डिक्रीज इन एनर्जी. डिक्रीज मतलब क्या होता है, डिफरेंस ढूंढना पड़ेगा. डिक्रीज का मतलब क्या होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस ढूंढना पड़ेगा. तो आई एम रिमूविंग द डिफरेंस, डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा मतलब डिफरेंस इन द एनर्जी, कितना कम हुआ ये ढूंढना है, इज डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू डैश. डब्ल्यू हमारा क्या है, C by 2 V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस C by 4 V1 plus V2 the whole square. इसमें क्या कॉमन निकाल सकते हैं, C by 2 निकालें कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में आएगा 2 टाइम्स C by 2 कॉमन लिया मैंने. सो यहाँ पर आएगा V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर, राइट. यहाँ पर क्या लिखूं मैं, माइनस, क्या बचेगा यहाँ पे, C तो बाहर आ गया, मतलब क्या बचेगा अंदर, 1 by 2 बचेगा, एंड V1 प्लस V2 द होल स्क्वायर. Are you guys getting this? So ये C by 2 हो जाएगा, और ये 2 टाइम्स ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस V1 प्लस V2 द होल स्क्वायर इज V1 स्क्वायर प्लस 2 V1 V2 प्लस V2 स्क्वायर. जैसे कि मैंने कहा कि ये हर बार करना नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ पहली बार कर रहे हैं तो मैं ये सॉल्व करके दे रही हूँ. नेक्स्ट टाइम आप इसको डायरेक्टली, फिर आपको ऑप्शन पता ही रहेगा. आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ इट कम्स. So this is going to be, ये 2 मैं बाहर लेके जा रही हूँ, C by 4. So this is 2V1 square plus 2V2 square minus V1 square minus 2V1 V2 minus V2 square. तो इसमें आपका क्या मिलने वाला है ब्रैकेट के अंदर, कैन यू सॉल्व एंड टेल मी व्हाट विल यू गेट इनसाइड द ब्रैकेट. नो नुसरत, दोनों में फर्क है बेटा. फर्स्ट ब्रैकेट इज V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर एंड सेकेंड ब्रैकेट इज V1 प्लस V2 द होल स्क्वायर. तो दोनों में फर्क है. या कोई मुझे बताएगा इस ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है. वेरी गुड आयुष, आयुष हैज ऑलरेडी आंसर्ड, आयुष कांदिवली. तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है वो क्या मिल रहा है. यस वेरी गुड महक, महक फ्रॉम अंधेरी. सो अंधेरी और कांदिवली का आंसर आ गया है. वो बोल रहे हैं ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है, उन्होंने बता दिया. ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है.
I am not telling those who are giving the wrong answers. I am only speaking to those who are giving the right answers. आप लोग थोड़ा ध्यान दे. 2v1 square minus v1 square will be v1 square. 2v2 square minus v2 square will be v2 square. तो क्या मिलना चाहिए आपको? क्या मिलना चाहिए? Mathematics. Are you getting v1 minus v2 the whole square? Are you getting v1 minus v2 the whole square inside this? आपको मिलना चाहिए v1 minus v1 plus v2 minus 2v1 v2 मिलना चाहिए आपको, which is v1 minus v2 the whole square. I hope everyone is getting this. यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा है? अभी आप मुझे बताओ कि आपका ऑप्शन कौन सा है. Which is the correct answer now? Which is the correct answer now? Now the correct answer is yes. Very good. This. तो अभी आप next time इसको देखोगे तो आपको solve नहीं करना है. You already know it is c by 4 v1 minus v2 the whole square. सिर्फ याद रखना common mistake ये होता है कि कुछ लोग v1 square minus v2 square समझ रहे हैं, यानी कि कुछ लोग a और c में confuse हो जाते हैं. It is whole square. It is v1 minus v2 the whole square. लास्ट स्टेप कुछ नहीं है बेटा, इसका रेसिप्रोकल लिया है हमने यहाँ पे, और रेसिप्रोकल लेने के बाद ये रेसिप्रोकल है आपका, और फिर 2 को एडजस्ट किया है ना, और 2 बाहर लेके आए हैं, 2 2 जा 4 हो गया इधर, और फिर इसको ओपन ब्रैकेट कर दिया, 2 इंटू v1 प्लस 2 इंटू v2 माइनस v1 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 माइनस माइनस है ना, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज होगा अंदर, फिर 2v1 स्क्वायर और माइनस v1 स्क्वायर होता है v1 स्क्वायर, 2v2 स्क्वायर और माइनस v2 स्क्वायर होता है v2 स्क्वायर एंड माइनस 2v1 v2. ऐसे करके हमने सॉल्व किया. प्लीज टेक डाउन स्लाइड नंबर 1. प्लीज टेक डाउन द सॉल्यूशन फॉर दिस. मार्क इट इम्पोर्टेंट. Tell me when it is done. I'll change the slide. Is this slide completed? Please understand every step because that's how you will be able to solve. So I hope you're understanding this because this is level 1. This is exactly what comes in the exam. So you should be able to do this. And the next time you see this, it'll become a little easier because you've already seen these kind of questions. First time जब आप करते हैं तो आपको ये नया लगता है. But आपको अभी आदत होनी चाहिए. We have to maximum practice the questions.
Can I move to the next slide? Please take it down carefully because this is an important solution. एलसीएम लिया ना प्रथम, ये बोल रहे हो ना आप? ये c/2 कॉमन लिया तो यहाँ पे 1/2 बचेगा और फिर इसका एलसीएम लेना पड़ेगा ना, तो 2 कॉमन लेके 2 उधर लेके गए, 2v1 + v2 द होल, समझ गए? हाँ, ओके। मैथ्स तुम लोग आजकल रीड कर रहे हो क्या? मुझे डाउट है, मुझे अभी डाउट आ रहा है तुम लोग पे। मैथ्स करो भाई, मैथ्स के बिना फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं खड़ा रहेगा, ये तो मैं तुमको लिख के देती हूँ। जो मैथ्स का टॉपर बनेगा वही फिजिक्स और केमिस्ट्री का टॉपर बनता है, ये तुम किसी से भी पूछो, मैथ्स को ड्रॉप कर ही नहीं सकते। Everyone finish writing? Okay. Yeah. This is an examination question. This was asked in MHCET. Can you try this question? Will you be able to try this question? This was asked for MHCET. Two condensers of capacitances 2C and C are joined in parallel and are charged up to V potential. The battery is removed and the condenser of capacitor C is filled completely with a medium of dielectric constant. What is the potential difference across the capacitors? So will you be able to explain this? The two capacitors, that is 2C and C, are joined in parallel पहले to a potential V. This is what is given. एक 2C है और दूसरा C है और इसको पोटेंशियल V डाला,
उसके बाद इस बैटरी को निकाला गया और ये जो सेकेंड वाला जो कैपेसिटर है, ये तो 2C है, ये जो सेकेंड वाला जो कैपेसिटर है इसको डाइलेक्ट्रिक से भर दिया और ये 2C एज इट इज है। सो यानी कि जब हम इसको डिस्कनेक्ट करते, इसकी पहली चार्जिंग हो चुकी थी, फिर हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, फिर अभी वो पूछ रहा है ये V कितना है। कैन यू ट्राई दिस? इट इज नॉट डिफिकल्ट। सारे फॉर्मूलाज आपको ऑलरेडी बताए गए हैं, आपको दिमाग लगाना है। एनीबडी हु कैन ट्राई। पहला स्टेप क्या होगा वहां से, अगर आप मुझे बता सकते हैं कि पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप क्या होगा? क्यू फाइंड करो। ओके, क्या हम यहाँ कॉमन पोटेंशियल वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? क्या हम यहाँ कॉमन पोटेंशियल वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? वही फॉर्मूला यूज करना है, यस, वही फॉर्मूला यूज करना है। पैरेलल है ना, पैरेलल में वही फॉर्मूला यूज करना है। ओके, पहले मेरा क्वेश्चन है कि पहले टोटल चार्ज आपको कितना आ रहा है? पहले केस में आपको सीपी लेना है ना, तो सीपी आपको कितना आ रहा है? 2C प्लस सी आ रहा है, 2CV प्लस CV आ रहा है। दैट इज एवरीवन इज गेटिंग 3CV। आई होप इतना तो किया रहेगा आपने। टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, सीपी नहीं, टोटल चार्ज, Q इज इक्वल टू CV। सो आपको 3CV मिला रहेगा। सेकेंड केस में वही चार्ज क्या हो जाता है?
एक हो जाता है 2CV-, मुझे नहीं पता है कि वो वोल्टेज क्या है, प्लस सेकेंड केस में वो हो जाता है K टाइम्स C ऑफ V-। समझा KC क्यों लिया? क्योंकि C में डाइलेक्ट्रिक डाला हमने एंड C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। सो हमको सेकेंड केस में वो मिल रहा है 2CV और 2CV। सो यहाँ पर अगर हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 2V-, 2 नहीं CV- अगर कॉमन लेते हैं हम लोग, CV- अगर हम लोग कॉमन लेते हैं, सो हमें मिलेगा K+2। यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। You can use direct common potential का formula also, C1V1 plus C2V2 अपॉन C1 plus C2। आप इसको भी यूज कर सकते हैं। Now, if you see, the question says that the battery is disconnected. Whenever the battery is disconnected, हम लोग क्या कहते हैं? Charge is conserved. Charge is conserved. इसका मतलब जो हमें लेफ्ट हैंड साइड पे मिला है, that can be equated to right hand side. So 3CV is equal to CV- K+2. C will get cancel. हमें V- चाहिए. V- is going to be 3V upon K+2. अब ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, ये आपको बहुत सारे जगह पे सेम मिलेंगे। नीट में भी ये पूछा गया है, सीटी में भी ये पूछा गया है, JEE मेन में ही ये पूछा गया है। सो यू नो इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन मार्वल में भी मिलेगा, ये सेम क्वेश्चन आपको MTG में मिलेगा, ये सेम क्वेश्चन आपको USS में मिलेगा। तो ये सब कॉमन क्वेश्चंस है क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चंस है। जो लोग नीट वाले बच्चे हैं, नीट वाले हैं यहाँ पर, नीट वाले हैं, ये बैच में नीट वाले भी हैं, राइट? तो अगर आपके पास प्ले स्टोर में जाके अगर आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं क्या, एक नीट सॉल्व्ड पेपर्स करके एक ऐप है, आपके पास है वो ऐप? नीट सॉल्व्ड पेपर्स 1998 से लेके 2020 तक के पेपर्स हैं। आप जस्ट प्ले स्टोर में जाएं आपके मोबाइल फोन पर। यस शांतनु, बोर्ड्स में भी आते हैं, यस। सो नीट के जो सॉल्व्ड पेपर्स हैं उसका एक ऐप है, उसमें ना सारे पेपर्स हैं 1998 से लेके, वो अपडेट भी करते वो लोग, 2020 तक के सारे पेपर्स विद सॉल्यूशन है। यस यस, वो एक येलो कलर का एक लोगो है उसका, येलो और एक ब्लू कलर का एक लोगो है। आई वांट all the NEET students to yes, NEET students to please download that app. ठीक है, तो जो लोग नीट वाले बच्चे हैं, अगर आप उसको लिंक कर सकते हैं, बिकॉज सी basically I have been teaching JEE main students and NEET students. So if you're in case your friends or anybody is interested, we can even go to that level of JEE main. Is that clear? So अगर आपके घर पे आपके siblings हैं, आपके friends हैं जो अभी अगले साल भी join करना चाहते हैं, so please let us know, because we are right now teaching you at that level, because it's very much important कि आप ये सारे examinations in the coming year दे, because we don't know what's the situation, right? Right now the situation is not great, so we don't know how you may we are headed. Maybe we are going to have a common exam. We don't know what is ahead in the education system, so इसलिए prepared रहना बहुत जरूरी है।
हमेशा आप प्रिपेयर रहे तो बहुत जरूरी है। सबका ये लिख के हो गया? तो यहाँ आपका आंसर ऑप्शन ए है। अच्छा, आपने वो लिंक भेज दिया है। ओके, सो नितिन हैज सेंड द लिंक, आई विल जस्ट कॉपी इट एंड सेंड टू एवरीबॉडी। ओके, so I'm just sending it to everyone on the chat box because Nitin has already done it. So the link I have put it in the chat box, so those who want can click on it, and if you're operating on your mobile phone, so इस तरीके से आपको पूरा एक्सेस मिल जाएगा सारे पेपर्स, एंड आई होप यू विल यू नो गो थ्रू दैट दिस चैप्टर का कैपेसिटर। तो आपको ये क्वेश्चन दिखेगा। Okay, can anybody try the question on the top, that is 113? ये थोड़ा easy है, तो I am sure that everyone will be able to do this. ये हमारा 38th क्वेश्चन है ऑफ क्लास वर्क। 38th क्वेश्चन ऑफ क्लास वर्क। हम 50 क्वेश्चंस क्लास वर्क में करेंगे और आप 50 क्वेश्चंस होमवर्क में करेंगे। डील और नो डील? अगर आप 50 क्वेश्चंस I will do in class work, I hope 50 questions you can do in homework, then it will be great. Okay, तो 38th question आप कर सकते हैं क्या? Can you try? In the figure shown, the effective capacitance between A and B. The effective capacitance between A and B. ये effective capacitance between A and B बोला ना, तो इसको लंबा कर देने का। कुछ सीरीज कुछ पैरेलल में आपको दिखा तो आंसर सबको आएगा। कौन सीरीज कौन पैरेलल पता नहीं मुझे, आपको दिखाई दे रहा है? कैन यू सी हु इज इन सीरीज एंड हु इज इन पैरेलल? वेरी गुड, सो आई हैव पीपल आंसरिंग। ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं? सीरीज। ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? सीरीज। कैसे पता चलेगा? यहाँ से ट्रैवल करके देखने का, कुछ स्प्लिट नहीं हो रहा है ना, यहाँ पर भी कुछ स्प्लिट नहीं हो रहा है। इसका ये मतलब है ऊपर आपको क्या मिल रहा है? C/2 मिलेगा, यहाँ पर बीच में एक C है और नीचे भी आपको C/2 मिलेगा। अब ये तीनों कैसे कनेक्टेड है? अब ये तीनों कैसे कनेक्टेड है? अब ये तीनों कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल। अगर ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है, व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? C/2 पैरेलल टू C/2, हाफ प्लस हाफ कितना होता है? हाफ प्लस हाफ 1 होता है, राइट? सो फिर C को भी ऐड करेंगे तो इज एवरीवन गेटिंग? यस, वेरी गुड, 2C इज द फाइनल आंसर। समझ में आया? दैट इज ऑप्शन ए। 39th question and the last question for today. Can everybody read question number 39? 39 says there are 3 capacitors, each of capacity 4 microfarad, which are connected in such a way that the effective capacitor is 6. मतलब वो क्या बोल रहा है? 3 कैपेसिटर को किस तरीके से वो कनेक्ट करे? 3 कैपेसिटर है, हर एक की वैल्यू 4 4 4 है। वो कैसे उसको कनेक्ट करे ताकि उसका फाइनल आंसर 6 आना चाहिए? तो लेट्स ट्राई।
लेट्स ट्राई ऑप्शन ए, कनेक्टिंग देम इन पैरेलल। इससे क्या आंसर आएगा आपको? अगर आपने 4 माइक्रोफैरेड के 3 कैपेसिटर को पैरेलल में रखा तो आपको कितना मिलेगा? 4 प्लस 4 प्लस 4 मिलेगा। सो आपको मिलेगा 4 प्लस 4 प्लस 4, आंसर क्या आएगा? 12। इज द आंसर 12? इज द आंसर 12? हमें कितना मिलना चाहिए? 6 मिलना चाहिए। सो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। सेकेंड बोल रहा है कनेक्ट 2 इन सीरीज एंड 1 इन पैरेलल। कनेक्ट 2 इन सीरीज, 2 इन सीरीज एंड 1 इन पैरेलल। हो रहा है क्या? दो को अगर सीरीज में किया तो 4/2, 4/2 कितना होता है? 2। और नीचे का कितना होगा? 4। सो ये 2 है, ये 2 बन गया और ये 4 बन गया। तो क्या आपका आंसर 6 आ रहा है यहाँ पे? क्या आपको ऑप्शन 6 आ रहा है? सो दिस इज द राइट आंसर। आपको समझा? हर एक को चेक करना पड़ेगा। कनेक्टिंग ऑल ऑफ देम इन सीरीज, नो वे। 4 डिवाइडेड बाय 3 आता है इसका आंसर, तो ये भी गलत है अपना आंसर, राइट। एंड कनेक्टिंग 2 इन पैरेलल, दो अगर आप पैरेलल में डालते हैं तो आपको 8 मिलेगा, और 8 को अगर आप सीरीज में डालेंगे तो आपको 24/10 कुछ मिलेगा। सो देयरफॉर द आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन बी। तो ये थोड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करना पड़ता है कि चेक करना पड़ता है, हर एक ऑप्शन को रीड करना पड़ता है और चेक करना पड़ता है कि ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। Is everything clear today? So this was a very important lecture because it is a level up. We are at 39th question. We have 11 questions to go. And then we will be starting with potential, that is electric potential. Okay, so I hope all of you have understood today because I have leveled up the questions today. And I expect that all of you will do a homework if I give you. Please try the questions because these are very important. And I've given you an app also today. The NEET students can refer to that app. You can ask me any level of question, in fact, because it's very, very important. Whatever I'm making you do is from the examination point of view, and you will not, have any problem in solving these. So you can tell me which possible way we can solve doubts, or we can go ahead, because I don't think anybody is right. Any of you writing JEE main, because then that's a different, completely different level. So I hope that you are studying at home, because please do not be lazy in the 12th standard, because we have to give our best. Though, however the exam are conducted, it is not the question. It's a question of after this, you're going to get into a professional course and this is your base. तो engineering में कोई नहीं बताने वाला है कि ये कैसे करते हैं, मेडिकल में आपको कोई नहीं समझाने वाला है बेस क्या है। तो 11th 12th जो है वो मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, इन सब का जो है वो बेस है। तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट वी नीड यू टू स्टडी 11th एंड 12th वेरी प्रॉपरली। अभी भी आपके पास टाइम है। अगर एक बार अगस्त या सितंबर गुजर जाता है उसके पास, फिर टाइम कम हो जाता है पढ़ने के लिए। सो आई होप यू आर स्टडिंग लिटिल बाय लिटिल। आई विल ऑलवेज टेल 10 क्वेश्चंस एवरी डे। अगर मैं आपको 50 का होमवर्क दे रही हूँ तो मैं आपको 7 डेज का गैप दूंगी। तो वो 7 डेज के गैप में आपको करना है, थोड़ा थोड़ा करके ट्राई करना है। 10 क्वेश्चंस एवरी डे, ताकि हम 10 क्वेश्चंस, फिर वो 10 क्वेश्चंस हर लेक्चर में 10-10 क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन देते जाऊंगी। एक शॉट में 50 का नहीं दूंगी, ठीक है? तो 10 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए जाएगा, आप 10 क्वेश्चन ट्राई करेंगे, फिर नेक्स्ट डे 10 जाएगा, तो 10-10 में ऐसा अपना होता जाएगा। फिर आप समझेंगे भी नहीं कि जब तक हमारा 10 लेक्चर्स कंप्लीट होता है आपके 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे, अगर आप रेगुलरली करेंगे तो। आई होप ऑल ऑफ यू गेट व्हाट आई एम सेइंग।
So that's it from me today. Have a great day ahead. It's a morning lecture. I hope you were awake and you were listening, because this is a very, very important lecture. Thank you so much. I don't mind taking the lecture at 6 o'clock in the morning. You'll be wide awake. सारे मतलब नींद ही उड़ जाएगी. So have a great day ahead. Bye bye and take care. Welcome, Rasika. Bye bye. Take care.